যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম রে। হরে কৃষ্ণ, দণ্ডবত প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের অন্তলীলায় আছি, চতুর্দশ পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 36 থেকে কন্টিনিউ করব। চৈতন্য চরিতামৃতম অন্তলীলা 14.36 অনওয়ার্ডস। ভূমির ওপর বসি নিজ নখে ভূমি লিখে, ভূমির উপর বসে নিজ নখে ভূমি লিখে, অশ্রু গঙ্গা নেত্রে বহে কিছুই না দেখে, অশ্রু গঙ্গা নেত্র বহে কিছু নাহি দেখে। পাইলু বৃন্দাবন নাথ পুনঃ হারাইল, পাইল বৃন্দাবন নাথ পুনঃ হারাইল, কে মোর নীলেক কৃষ্ণ কাহা মুই আইনু। কে মোর নীলক কৃষ্ণ কাহা মুই আইনু। প্রাপ্তরত্ন হারালে মানুষের যে অবস্থা হয়, সেইভাবে মহাপ্রভু অত্যন্ত বিচলিত হলেন এবং বিষণ্ণ হয়ে তিনি তার বাসস্থানে ফিরে গেলেন। শশী মাতাজি, বাসস্থান মানে কোথায়? কিনকন বলবো? বৃন্দাবন। বাহ, খুব সুন্দর। তার মানে পুরী থেকে বৃন্দাবন চলে গেল মহাপ্রভু। जहाँ उनका घर था वहाँ रहने के लिए। कहाँ? पुरी में ही तो। यस, पुरी में नीलमणि माता जी कहाँ? पुरी में तो मालूम है, गंभीरा में प्रभु जी। गंभीरा में। हाँ, ভূমিতে বসে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার নখ দিয়ে দাগ কেটে কেটে ভূমিতে লিখতে লাগলেন এবং তার চোখ দিয়ে গঙ্গার ধারার মতো অশ্রু ঝরে পড়তে লাগলো এবং তিনি তখন চোখে কিছুই দেখতে পেলেন না। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলতে লাগলেন, আমি বৃন্দাবন নাথ শ্রীকৃষ্ণকে পেয়েছিলাম, কিন্তু তাকে পেয়েও আমি পুনরায় তাকে হারালাম। কে আমার কৃষ্ণকে নিল, আমি কোথায় এলাম? এই ভাব শ্রীমতী রাধারানীর। প্রথমে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অনুভব করেছিলেন যেন তিনি বৃন্দাবনে গেছেন এবং সেখানে গোপিকাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রাস নৃত্য দর্শন করছেন। তারপর তিনি কুরুক্ষেত্রে আনিত হয়ে সুভদ্রা এবং বলরাম সহ জগন্নাথ দেবকে দর্শন করলেন। এইভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বৃন্দাবন এবং বৃন্দাবন নাথ শ্রীকৃষ্ণকে হারালেন। সেই সময় শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণ বিরহে দিব্য উন্মাদনা অনুভব করেছিলেন। কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ তার ঐশ্বর্য প্রকাশ করেন, কিন্তু বৃন্দাবনে তিনি তার মাধুর্য স্বরূপে বিরাজ করেন। শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে এক পাও কোথাও যান না, তাই গোপিকাদের কাছে কুরুক্ষেত্রের গুরুত্ব বৃন্দাবন থেকে কম। যদিও ঐশ্বর্য পর বৈকুণ্ঠ ভাবের ভক্তরা কুরুক্ষেত্রে সুভদ্রা এবং বলরাম সহ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন অধিকতর আগ্রহী হতে পারেন, কিন্তু গোপিকারা শ্রীমতী রাধারানীর সঙ্গে রাসন নৃত্য পরায়ণ বৃন্দাবন নাথ শ্রীকৃষ্ণকেই কেবল দর্শন করতে চান। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ব্যবহারিক দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখিয়েছিলেন কিভাবে একজন ভক্ত কৃষ্ণ বিরহে রাধারানীর এবং গোপিকাদের ভাব অবলম্বন করেন। এইভাবে ভাবিত ভক্তরা বৃন্দাবন ছাড়া আর অন্য কোথাও শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করতে চান না। তাই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অনুশোচনা করেছিলেন, আমি বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণকে পেয়েছিলাম, কিন্তু এখন আবার তাকে হারিয়ে কুরুক্ষেত্রে এলাম। অতি উন্নত স্তরে ভক্ত না হলে এই সমস্ত গূঢ় অনুভূতি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না। কিন্তু শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতের গ্রন্থাকার যতদূর সম্ভব সেই দিব্য উন্মাদনা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন এবং আমাদের কর্তব্য হচ্ছে যতদূর সম্ভব তা অনুভব করার চেষ্টা করা। তাই একাদশ শ্লোকে গ্রন্থাকার অনুরোধ করেছেন, তাতে বিশ্বাস করে শূন্য ভাবের বর্ণন, হইবে ভাবেরও জ্ঞান, पाइबा प्रेम धन। ऐसे कविराज गोस्वामी ने आगे सबको संकेत दिया था, तो जो भी बोल रहा है महाप्रभु, ये सब विश्वास कीजिए, श्रद्धा से विश्वास कीजिए, अदरवाइज फिर क्या होगा? फिर भावेर ज्ञान, भावेर ज्ञान, उनका भाव के बारे में हम लोग समझ पाएंगे और पाइबा
प्रेमोधन, कृष्ण प्रेम का धन मिलेगा। तो श्रद्धा से ये समझना चाहिए। यस अशोक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु बोले, यहाँ पर बोला, महाप्रभु बोल रहे हैं कि कृष्ण को हम पा गए थे, लेकिन वो फिर भूल मतलब हरा गए हम। तो ऐसा कब कैसे हुआ? आप पिछले दिन हम लोग दर्शन कर रहे थे ना, जब महाप्रभु वो जो बूढ़ी माता जी जो चल गई थी, उसके बाद लिखा हुआ है 33 नंबर श्लोक में, 33-34 में देखिए, 34 नंबर श्लोक देखिए, 34 पढ़िए अनुवाद। 33 पढ़िए, पहले 33 पढ़िए, 33-34 पढ़िए। এখন সেই স্ত্রী লোকটিকে দেখে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বাহ্য জ্ঞান হলো এবং তিনি জগন্নাথ বলদেব সুভদ্রার শ্রী বিগ্রহ দর্শন করলেন। 31 पढ़िए। তার ঠিক পূর্বে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন শ্রী জগন্নাথ দেবকে দর্শন করছিলেন, তখন তিনি তাকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন রূপে দর্শন করেছিলেন। तार ठीक पूर्व माने ये जो बूढ़ी माता जी जो चढ़ गए ना, इसके पूर्व में सोचिए, आप लोग सब कल्पना कीजिए, भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन कर रहे पूरी मंदिर के अंदर में, लेकिन उनको क्या लग रहा है कि साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण को दर्शन कर रहे हैं। ठीक है, सब समझ गए? फिर क्या हुआ? 32 पढ़िए। তার স্বপ্ন দর্শনের আবেশে তার মন সেইভাবে ভাবিত হয়েছিল, যেখানেই তিনি দৃষ্টিপাত করছিলেন সেখানেই তিনি মুরলী বদন শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করছিলেন। कंटिन्यू। এখন সেই স্ত্রী লোকটিকে দেখে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর বাহ্য জ্ঞান হলো এবং তিনি জগন্নাথ বলদেব ও সুভদ্রার শ্রী বিগ্রহ দর্শন করলেন। যা যা ब्रजेंद्र नंदन दर्शन করছিল, কিন্তু ये घटना हुआ श्रीलंका का, ये जो कंधे पे चढ़ गया, फिर अचानक अपना कॉन्शियसनेस होश में आया महाप्रभु, और फिर अभी जगन्नाथ बलराम से, तो ब्रजेंद्र नंदन से जगन्नाथ हो गया। समझ में आ रहा है मुन्ना प्रभु? फिर क्या हुआ? 34 पढ़िए। তাদের শ্রী বিগ্রহ দর্শন করে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু মনে হচ্ছিল তিনি যেন কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করছেন। जा তখন देखिए, वहां वृंदावन दर्शन कर रहा था ब्रजेंद्र नंदन, लेकिन अभी लग रहा है जगन्नाथ को दर्शन करके कुरुक्षेत्र दर्शन कर रहे हैं। তিনি তখন ভাবলেন আমি কি কুরুক্ষেত্রে এসেছি, বৃন্দাবন কোথায়? कंटिन्यू। प्राप्त প্রাপ্তরত্ন হারালে মানুষের যে অবস্থা হয়, সেইভাবে মহাপ্রভু অত্যন্ত বিচলিত হলেন এবং বিষণ্ণ হয়ে তিনি তার বাসস্থানে ফিরে গেলেন। বোঝা গেল অশোক প্রভু? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক তো গতকালের বিষয়, গতকাল বোঝেননি এই জিনিসটি? বুঝলাম, কিন্তু কন্টিনিউটা হচ্ছে না বলে আমি মিস করলাম। কন্টিনিউ করতে আমার কোনো অসুবিধা নেই, বলবেন তো একদম কন্টিনিউ করতে থাকবো। 1 ঘন্টার ক্লাস। হরে কৃষ্ণ। ওকে, 38 নম্বর শ্লোক। স্বপ্নাবেশে প্রেমে প্রভুর গর গর মন, স্বপ্নাবেশে প্রেমে প্রভুর গর গর মন, বাহ্য হইলে হয় যেন হারাইল ধন, বাহ্য হইলে হয় যেন হারাইল ধন। উন্মত্তের প্রায় প্রভু করেন গান নৃত্য, উন্মত্তের প্রায় প্রভু করেন গান নৃত্য, দেহের স্বভাবে করেন স্নান ভোজন কৃত্য, দেহের স্বভাব করেন স্নান ভোজন কৃত্য, দেহের স্বভাবে করেন স্নান ভোজন কৃত্য, দেহের স্বভাবে করেন স্নান ভোজন কৃত্য। রাত্রি হইলে স্বরূপ রামানন্দ লইয়া, রাত্রি হইলে স্বরূপ রামানন্দে লইয়া, আপন মনের ভাব কহে উঘারিয়া, আপন মনের ভাব কহে উঘাড়িয়া। प्राप्य प्रणस्ताच्युतवित्तात्मा,
प्राप्त प्रणष्टाच्युत भित्त्वात्मा यायो विषादो जित देह गेह जजो विषाद जित देह गेहो गृहीत कपालिका धर्म को में गृहीत कपालिक धर्म को में गृहीत कपालिक धर्म को में गृहीत कपालिक धर्म को में वृंदावनम सेन्द्रिय शिष्य वृंद वृंदावनं सेन्द्रिय शिष्य वृंद। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু যখন স্বপ্নে শ্রীকৃষ্ণের রাস ও নৃত্য দর্শন করছিলেন তখন তিনি চিন্ময় আনন্দে সম্পূর্ণরূপে মগ্ন হয়েছিলেন, কিন্তু যখন তার বাহ্য চেতনা হলো তখন তার মনে হলো যেন তিনি এক অমূল্য সম্পদ হারিয়েছিলেন। সেই দিব্য উন্মাদনার প্রভাবে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু উন্মত্তের মতো গান করতেন এবং নৃত্য করতেন। দেহের স্বভাবে কেবল তিনি স্নান ভোজন আদি দৈনন্দিন কৃত্য সম্পাদন করতেন। समझ में आना सबको? देहर स्वभाव बॉडी मेंटेन्स के लिए सिर्फ ये दुई कार्य करता। রাত্রিবেলা শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু স্বরূপ দামোদর এবং রামানন্দ রায়ের কাছে তার মনের ভাব ব্যক্ত করতেন। এই শ্লোকটি একটি উপমালঙ্কার মাত্র। উপমালঙ্কার মানে হচ্ছে ইংলিশে লিখেছে মেটাফরিক্যাল। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, আমার আত্মা কৃষ্ণ রূপ সম্পদ একবার প্রাপ্ত হয়ে পুনরায় হারিয়ে বিষাদ ক্রমে দেহ গেহ পরিত্যাগ করে কাপালিক যোগীর ধর্ম গ্রহণ করে স্বীয় ইন্দ্ররূপী শিষ্য বৃন্দের সঙ্গে বৃন্দাবন গমন করেছিল। Sri Chaitanya Mahaprabhu said, at first my mind somehow achieved the treasure of Krishna, but it again lost him. Therefore it gave up my body and home because of lamentation and accepted the religious principles of a Kapalik yogi. Then my mind went to Vrindavan with its disciples, my senses. Disciples कौन है? उनकी इंद्रिय। सबको समझ में आया? हिंदी में पढ़िए शशि माता जी। कापालिक धर्म क्या है? श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, पहले मेरे मन ने कृष्ण रूपी रत्न को जैसे कैसे प्राप्त किया, किंतु पुनः उसे खो दिया। सो कृष्ण रूपी रत्न को प्राप्त किया माने रासलीला दर्शन करा था दिलीप प्रभु महाप्रभु, ठीक है, वो कृष्ण रूपी रत्न है। लेकिन फिर क्या हुआ? अचानक ये घटना घटा तो फिर टूट गया स्वप्न। वो जो काल दर्शन कर रहा था रासलीला वो टूट गया। फिर क्या हुआ? कुरुक्षेत्र में, शशि माता जी पुरी में। इसलिए उसने शोक के कारण मेरे शरीर और घर को छोड़कर कापालिक योगी के धर्म को स्वीकार कर लिया। माने इसको तुलना किया गया है, कोई कापालिक योगी माने वो जो द्वारका के लीला या कुरुक्षेत्र के लीला वहां यानी जगन्नाथ को दर्शन किया तो वैसे तुलना किया जा रहा है। समझ रहे हो? माने हाईएस्ट लेवल से थोड़ा लो लेवल में आ गया, यही बता रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जगन्नाथ लो लेवल है, ओके, बट महाप्रभु ऐसे बता रहे हैं कहाँ थे हम, कहाँ ओहो क्या हो गया, ऐसे आगे। तब मेरा मन मेरी इंद्रिया रूपी अपने शिष्यों के साथ वृंदावन चला गया। ना ये हमको समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है फिर से वापस वृंदावन यानी वापस रास में चला गया, हो सकता है। लास्ट सेंटेंस कोई कुछ बोलना चाहेंगे? वो मन की बात बोल रहे हैं प्रभु। हाँ तो खोए खोए रहने लगे प्रभु। मन अपने इंद्रियों सहित हम वहाँ वृंदावन विचरण करने लगे। फिर वापस वृंदावन चले गए क्या? रथ से वापस चले गए वृंदावन। नहीं प्रभु जी, हाँ अपने मन में फिर से वही सब लीला को स्मरण तात्पर्य करने दिया हुआ है की क्या कोशिश हिंदी में? हिंदी में तात्पर्य दिया हुआ है क्या? नहीं प्रभु जी, वो तो एक ही लाइन लिखा। बोले ना कि खाने और सोने का स्वभाव बस पूरा करते थे, मतलब खोए रहते थे हमेशा वहाँ। नहीं, मैं बोल रहा हूँ फिर से वृंदावन चले गए, ये लिखा हुआ है। यस पिंकी माता जी।
बोल रहे थे प्रभु जी कि वो मन से फिर से वही लीला को स्मरण करने का बार बार कोशिश कर रहे हैं, मुझे भी यही लग रहा है। हाँ, कि वापस से फिर हमको दिख जाए वही रासलीला, फिर से मुझे दिख जाए। हाँ, हो सकता है वही, क्योंकि देखिए फिर 42 आया ना, 42 में देखते हैं क्या बोलते हैं, फिर समझ में आएगा लिंक। तो उसमें बता रहे हैं ना दोनों लोग, स्वरूप दामोदर जी को, और उनको बता रहे हैं, तो वो लीला बताते बताते फिर से वहां पहुंच गए। या ये भी हो सकता है। ओके 42 यस गायत्री राधिका माता जी। ना प्रभु बोल रहे हैं प्रभु जी, ये जो लिखा हुआ है, तब मेरा मन मेरी इंद्रिय रूपी अपने शिष्य के साथ वृंदावन चला गया, तो क्या मन को गुरु के रूप में देख और इंद्रिय शिष्य के रूप में क्या है? ये एक मेटाफर लिखा हुआ है ना, एक उपमा जैसा, एक तुलना किया गया है। अच्छा, उदाहरण देते हैं ना कभी कभी, एनालॉजी इंग्लिश में बोलते हैं। और थोड़ा पढ़ने से क्लियर होगा, थोड़ा आगे देखते हैं 42 नंबर श्लोक। नाचे शची नंदन प्राप्त रत्न हाराइया तार गुण संगरिया महाप्रभु संतापे विभोर। प्राप्त रत्न हराइया तार गुण सडरिया महाप्रभु संतापे विवल। हरे राय स्वरूपेर कंठ धरी कहे हा हा हरि हरि। राय स्वरूपेर कंठ धरी कहे आहा हरि हरि। धैर्य गेल हইলা चपल हरि हरि। धैर्य गेलो चपल धैर्य गेलो इया चपल हरि हरि। धैर्य गेलो इहा चपल हইला चपल। ओके, बहुत ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो ये सब अभी ये अंतलीला ऐसे भी आने वाला है, बहुत एनालॉजी। म्यूट करिए माता जी, बहुत एनालॉजी आने वाला है, बहुत तुलना उपमा, बहुत कुछ आने वाला है। तो बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। श्लोकार्थ प्राप्त रत्न हारिए, प्राप्त रत्न हारिए, इस सब समझ रहे ना दिलीप प्रभु? प्राप्त रत्न माने वो जो ब्रजेंद्र नंदन कृष्णा रासलीला वो सब स्मरण आ रहा था, वो खो गया। क्यों खो गया? अचानक डाइवर्ट हो गया मन। तार गुण स्मरण करे, तार माने ब्रजेंद्र नंदन का स्मरण करके মহাপ্রভু संतापे विहल হয়েছিল। he became sad। संतापे माने वो हराने का शोक में विहल हो गया। Having lost his acquired gems, Sri Chaitanya Mahaprabhu became overwhelmed with lamentation by remembering its attributes। রামানন্দ রায় এবং স্বরূপ দামোদরের কণ্ঠে জড়িয়ে ধরে তিনি বিলাপ করেছিলেন, হায় হায় আমার শ্রীহরি কোথায়, আমার শ্রীহরি কোথায়। এইভাবে তিনি ধৈর্য হারিয়ে চঞ্চল হয়েছিলেন। ठीक है, क्लियर है सबको? इजी, आई थिंक ये तो इजी लग रहा है। 43 नंबर। प्रभु जी, हाँ नाचे सचिनंदन बहुत अच्छा लग रहा है, गीत तो हम लोग अभी गए ना। 43 শুনো বান্ধব, শুনো বান্ধব কৃষ্ণের মাধুরী। বলি শোনো বান্ধব কৃষ্ণের মাধুরী। যার লোভে মোর মন ছাড়িল বেদ ধর্ম। যার লোভে মোর মন ছাড়িল বেদ ধর্ম। যোগী হইলা হইল ভিখারি। যদি হইয়া হইল ভিখারি। যোগী হইয়া হইল ভিখারি। যোগী হইয়া হইল ভিখারি। তিনি বলেছিলেন মানে কবিরাজ গোস্বামী বললে, মহাপ্রভু फिर क्या बोला? হে বন্ধুগণ, কৃষ্ণের মাধুরী শ্রবণ করো। সেই মাধুর্যের লোভে আমার মন লোক ধর্ম এবং বেদ ধর্ম পরিত্যাগ করে যোগী হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেছে। आप लोग समझ पा रहे? राधा रानी के भाव में आ गया। हाँ, আমার মন লোক ধর্ম এবং বেদ ধর্ম পরিত্যাগ করে, राधा रानी लोक धर्म वेद धर्म माने सोसाइटी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ तोड़ करके वेद धर्म, जो शास्त्र में जो स्क्रिप्चुरल नहीं, पति को छोड़ के नहीं जाना चाहिए, हाँ, ससुराल छोड़ के नहीं जाना, ये सब मारो गोली। अभी भगवान के पास चला गया ना। আমার মন লোক ধর্ম এবং বেদ ধর্ম পরিত্যাগ করে सब कुछ छोड़ के
যোগী হয়ে কৃষ্ণ বৃত্তি অবলম্বন করেছে, भगवान श्री कृष्ण के शरण ग्रहण किया। यही बताया जा रहा है। प्रभु जी श्लोक नंबर क्या है? ये 43 है माता जी, अभी 44 होगा। ओके। कृष्ण लीला, अच्छा वो भी ट्यून में कर सकते हैं। कृष्ण तब पुण्य हवे भाई पुण्य चले। কৃষ্ণ লীলা মণ্ডল শুদ্ধ শঙ্খ কুণ্ডল গড়ি আছে সুখ কারিকর। কৃষ্ণ লীলা মণ্ডল শুদ্ধ শঙ্খ কুণ্ডল করিয়াছে সুখ কর করি। ভেরি গুড। সেই কুণ্ডল কানে পরি তৃষ্ণা লাউ থালি ধরি আশা কুণ্ডল এরো উপর। এই কুণ্ডল কানে পরি কৃষ্ণা লাউ থালি ধরি আশার ঝুলি কান্ধের উপরে। ओके, सब ध्यान से सुनिए इसका अर्थ। सुदक्ष कारीगर सुखदेव गोस्वामी, ये महाप्रभु बोल रहे हैं। हाँ, श्री कृष्ण रासलीला रूप शुद्ध শঙ্খ কুণ্ডল রচনা করেছেন। সেই কুণ্ডল কানে পড়ে তৃষ্ণারূপ লাউয়ের ভিক্ষা পাত্র আমি হাতে নিয়েছি এবং আশারূপ ঝুলি আমার কাঁধে নিয়েছি। ओके, ये सब एनालॉजी है, एक एक चीज से कंपेयर किया गया है। सुदक्ष कारीगर सुखदेव गोस्वामी, तो सुखदेव गोस्वामी को क्या बोला गया है? इज एन एक्सपर्ट कारीगर। यस, पंकज मित्र राजेश प्रभु आप हैं? यस, शशि माता जी थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए इसको, ये श्लोक को प्लीज। अत्यंत शुभ कारीगर सुखदेव गोस्वामी, मतलब सुखदेव गोस्वामी जो लिखे हैं कृष्ण की रासलीला का वृत्त, जो कृष्ण की रासलीला का ये जो गोलाकार चीज है वो कैसा है? शंख से बने एक कुंडल की तरह शुद्ध है। शंख से जो कान का कुंडल बनता है गोला, उसी तरह ये रासलीला का वृत्त है। मेरे मन रूपी जो लिखा हुआ है जी, रासलीला रूप, श्री कृष्ण रासलीला रूप, यहाँ पे वृत्त लिखा हुआ है प्रभु जी हिंदी में, बंगाली में रूप लिखा है। निर्मित कृष्ण की रासलीला का वृत्त जो गोलाई है। मेरे मन रूपी योगी ने उस कुंडल को अपने कान में धारण कर रखा है। तो मेरा जो मन, योगी का जो मन जैसे होता है, तो वो जो शंख से बने कुंडल की तरह जो वृत्त है, रासलीला का मतलब लीला है, वो अपने कान में धारण कर रखे, मतलब कान से सुन रखे हैं। उसने एक लौकी से मेरी तृष्णाओं का कमंडल बना लिया है। जो मेरी इच्छा है उसका कमंडल किस तरह से बनाया है? लौकी का सेब की तरह, लौकी से बनाया है। और मेरी आशाओं का झोला अपने कंधे पर टांग लिया है। और मेरा जो आशा है कि क्या आशा है उनका, क्या आशा है प्रभु जी? वो भगवान का रासलीला का जो दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करना ना, तो उसको अपने कंधे पर टांग लिया है। महाप्रभु बोल रहे हैं। हाँ, तृष्णा रूप लाओ एक भिक्षा पात्र, ये क्या बोला था? हरे कृष्णा। यस, कहाँ पहुंचे? इसका हिंदी हुआ था। इसका ये हो गया ना 44, एक्सप्लेनेशन हो गया, सब क्लियर है। एक बार हिंदी में पढ़ दीजिए इसका अनुवाद। अत्यंत शुभ कारीगर सुखदेव गोस्वामी द्वारा निर्मित कृष्ण की रासलीला का वृत्त शंख से बने एक कुंडल की तरह शुद्ध है। मेरे मन रूपी योगी ने उस कुंडल को अपने कान में धारण कर रखा है। उसने एक लौकी से
मेरी तृष्णाओं का कमंडल बना लिया है और मेरी आशाओं का झोला अपने कंधे पर टांग लिया। योगी हो गया ऐसे महाप्रभु। हाँ, yes। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী মদন ভরিয়া সবে বলো হরি হরি। हरि बोल चैतन्य चरितामृतम की जय। प्रभुपाद की जय। भक्तवृंद की जय। जय जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।